أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. تو ہم پڑھ رہے ہیں اسم کے چوتھے پہلو کے بارے میں جو کہ ہے اعراب۔ دو سوال آتے ہیں ہمارے سامنے، اعراب کیا ہوتا ہے اور اعراب جاننا پڑھنا سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اعراب ہوتا کیا ہے؟ اسم کے معنی میں، کسی بھی اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر اس اسم کے آخری حصے پر ہونے والی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 1، اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو جواب کیا ہو گیا؟ اسم کے معنی کے بغیر اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر اس اسم کے آخری حصے پر ہونے والی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہو گیا ہمارے پاس کہ اعراب جاننا ضروری کیوں ہے؟ تو اعراب جملے میں ہمیں اس اسم کی حالت، پوزیشن یا سٹیٹس کو بتاتے ہیں، سٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں کہ آیا وہ اسم خود کام کرنے کی حالت میں ہے، خود کام کر رہا ہے، یا اس پر کام ہو رہا ہے، یا وہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا واحد مذکر اسم کا اعراب، واحد مذکر اسم کا اعراب، اور اس کو ہم نے پہچانا کیسے تھا؟ واحد مذکر اسم کے اعراب کو ہم نے کیسے پہچانا تھا؟ اس اسم کے آخری حرف پر موجود حرکت سے۔ ٹھیک ہے جی۔ پیشی حالت ہم نے دیکھی تھی دو پیش کے ساتھ نکرہ اسم کی، زیری حالت دو زیر کے ساتھ، اور زبری حالت دو زبر کے ساتھ زائد الف لگا کر ہم نے دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے واحد مذکر اسم کی زبری حالت بنائی تھی دو زبر کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ میں ایک الف کا اضافہ کیا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اہل عرب جو ہیں، عرب والے جو ہیں، ان کے ہاں یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے کہ وہ دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، تو ہم نے بھی کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے واحد مذکر اسم کی اعرابی حالتیں بنائی تھی تو کیسے بنائی تھی؟ جیسے مسلم ہے مثال کے طور پر، تو پیشی حالت مسلمن، زبری حالت مسلمن دو زبر اور زائد الف کے ساتھ، اور مسلمین زیری حالت۔ اور اگر یہ اسم الف لام والا ہو تو پھر المسلم، اس کی تینوں اعرابی حالتیں کیا بنیں گی؟ المسلم، المسلمہ، المسلمی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس بن گیا تھا واحد مذکر اسم کے اعراب۔ تو واحد مذکر اسم کے اعراب کو ہم نے کیسے پہچانا تھا؟ اس اسم کے آخری حرف پر موجود حرکت سے، جو ہمیں سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نکرہ ہوگا تو دو پیش دو زیر دو زبر، دو زبر کے ساتھ ایک زائد الف، اور اگر الف لام والا اسم ہوگا تو ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر۔ پھر ہم نے دیکھا تھا مثنیٰ۔ مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، مثنیٰ کہتے ہیں دو کو، اور مثنیٰ بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں۔ اور مثنیٰ کی پہچان کیا ہے؟ آنی اور عینی۔ آنی پیشی حالت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ عینی زیری اور زبری حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عینی جو ہے وہ زیری زبری حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا مثنیٰ مذکر اسم کا اعراب، مثنیٰ مذکر اسم کا اعراب۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ مثنیٰ مذکر اسم کا جو اعراب ہے اس کی پیشی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنی سے ظاہر ہوتی ہے، آنی سے بنتی ہے، اور زیری زبری حالت عینی سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس واحد اسم دیا جائے ہمیں مسلمن، اور ہمیں کہا جائے کہ اس کا مثنیٰ بنائیں، تو ہم کیا بنا دیں گے؟ مسلمن ہے تو کیا کریں گے؟ مسلمن، آخر سے تنوین ہٹائی، ایک زبر لگائی اور آگے آنی کا اضافہ کر دیا تو مسلمانی بن گیا۔ اگر ہمارے پاس وہ مسلمن، اور اس سے ہمیں کہا جائے کہ مثنیٰ کی اعرابی حالت بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ مسلمن ہے، مسلمن، تو کیا کریں گے؟ تنوین ہٹائی، ایک زبر لگایا اور آگے عینی لگا دیا تو بن گیا مسلمینی۔ اگر یہ ہو مسلمن اور ہمیں کہا جائے کہ مثنیٰ کی اعرابی حالت بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ مسلمن، تنوین ہٹائی، ایک زبر لگائی اور آگے عینی لگا دیا تو بن گیا مسلمینی۔
ठीक है जी। तो मुसन्ना इसम के एराब को हम कैसे पहचानते हैं? हरूफ के साथ और उनकी साउंड्स के साथ, उनकी आवाज के साथ। आनी पेशी हालत की साउंड है और ऐनी जेरी जबरी हालत की साउंड है। ठीक है जी। पेशी हालत आनी से जाहिर होती है मुसन्ना की, और जेरी जबरी हालत जो है वो ऐनी से जाहिर होती है। और मुसन्ना बनाने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। क्या करते हैं? वाहिद इस्म के आखिर से तनवीन हटाकर जबर लगाई और आगे आनी और ऐनी का इजाफा करने से हमारे पास मुसन्ना बन जाता है। और अगर अलिफ लाम वाला इस्म हो तो उससे हमने देखा था कि मुसन्ना में कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ अलिफ लाम साथ लग जाता है, शुरू में लग जाता है। ठीक है जी। फिर हमने देखा था कि वाहिद इस्म अगर पेशी हालत में हो तो उसका मुसन्ना भी सिर्फ पेशी हालत में ही बनेगा। ये अपने सवाल को गौर से पढ़ना है। ठीक है। आपको पेपर या टेस्ट में पूछा जाए मुजरिम, मिसाल के तौर पर मुजरिम लिखा हो, मुजरिम, और आगे कहा जाए कि मुसन्ना की तीनों एराबी हालतें लिखें, फिर आपको तीनों बनानी पड़ेंगी। मुजरिमानी पेशी हालत, मुजरिमैनी जबरी हालत, मुजरिमैनी जेरी हालत। ठीक है जी। और अगर आपसे कहा जाए मुजरिमुन देकर, मुजरिमुन कि इसकी तीनों एराबी हालतें बनाएं वाहिद इसम की, तो फिर आप तीनों बनाएंगे, मुजरिमुन, मुजरिमन दो जबर एक अलीफ के साथ, और मुजरिमिन। ठीक है। अगर आपको खाली मुजरिमुन देकर कहा जाए कि इसकी इराबी हालत बताएं, बताएं, तो आप कहेंगे मुजरिमुन पेशी हालत में है। अगर आपसे कहा जाए कि मुजरिमुन आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसकी मुसन्ना की इराबी हालत बनाएं, तो आप बना देंगे मुजरिमानी, क्योंकि पेशी है। ठीक है। तो आपने सवाल पे गौर करना है कि आपसे इराबी हालत के बारे में पूछा गया है तो वो सिर्फ एक बनानी होगी। और अगर आपसे कहा जाए कि इराबी हालतें बनाएं, फिर तीनों बनानी होंगी। तो सवाल को गौर से पढ़ना है। ठीक है। सवाल को गौर से पढ़ना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है जी। वाहिद इसम देकर उस वाहिद इसम की तीनों अरबी हालतें पूछी जा सकती हैं। वाहिद इसम देकर उससे कहा जा सकता है कि मुसन्ना बनाएं और मुसन्ना की तीनों अरबी हालतें बताएं। तो सवाल को गौर से देखना है कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए मुस्लिम, और कहा जाए इस वाहिद इसम की तीनों अरबी हालतें बनाएं, तो आप क्या करेंगे? मुस्लिम पेशी हालत मुस्लिमुन, जबरी हालत मुस्लिमन दो जबर अलिफ के साथ, और मुस्लिमिन जेरी हालत। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मुस्लिम देकर कि इसका मुसन्ना बनाएं और फिर मुसन्ना की तीनों राबी हालतें लिखें, तो फिर आप कैसे करेंगे? मुस्लिम आगे लिखेंगे पेशी हालत मुस्लिमानी, जबरी हालत मुस्लिमैनी, जेरी हालत मुस्लिमैनी। ठीक है। तो आपने सवाल को गौर से पढ़ना है। तो वाहिद इसम अगर पेशी हालत में हो तो उसका मुसन्ना भी पेशी हालत में ही बनेगा। मुजरिमुन है तो सिर्फ हम बनाएंगे मुसन्ना मुजरिमानी, जेरी जबरी नहीं बनाएंगे। और अगर वाहिद इसम जबरी हालत में हो तो फिर मुसन्ना भी जबरी हालत में ही बनेगा। और इसी तरह अगर वाहिद इसम जेरी हालत में है तो मुसन्ना भी फिर जेरी हालत में ही बनेगा। यानी अगर मुजरिमुन हो तो मुसन्ना बनेगा मुजरिमानी आनी के साथ। अगर जो इसम है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर मुजरिम ही ले लें, तो मुजरिमन हो अगर तो ये जबर के साथ है, जबरी हालत में है, तो फिर कैसे बनाएंगे इसका मुसन्ना? मुजरिमैनी। और अगर जेरी हालत हो मुजरिमिन, तो फिर कैसे बनाएंगे जेरी हालत में इसका मुसन्ना? मुजरिमैनी। तो मुसन्ना इसम की जेरी और जबरी हालत एक जैसी होती है, सेम साउंड ऐनी। आनी पेशी हालत की साउंड है और ऐनी जेरी जबरी हालत की साउंड है। अब मिसाल ले लेते हैं हमारे पास, पहले नकिरा को देखते हैं फिर मारिफा को देखेंगे इंशाल्लाह। तो नकिरा इसम है जी हमारे पास एक हाफिज, और हमें कहा जाए हाफिज कि हाफिज एक वाहिद इसम है ना, तो इस वाहिद मुजक्कर इसम की तीनों इराबी हालतें लिखें। तो हाफिज, अब इसकी पेशी हालत क्या हो जाएगी? दो पेश के साथ हाफिजुन। जबरी हालत क्या हो जाएगी? दो जबर और जायद अलिफ के साथ हाफिवन, हाफिवन। और जेरी हालत क्या बन जाएगी? दो जेर के साथ हाफिजिन। और अगर हमें कहा जाए कि हाफिज ये वाहिद इसम आपको दिया गया है, अब इसकी मुसन्ना की तीनों इराबी हालतें लिखें, तो फिर क्या करेंगे? पेशी हालत क्या बना देंगे? आनी के साथ हाफिजानी, पेशी हालत बन गई। जबरी हालत कैसे बनाएंगे? आईनी के साथ हाफिजैनी। और जेरी हालत कैसे बनाएंगे? आईनी के साथ हाफिजैनी। तो पेशी हालत हाफिजानी, जबरी हालत हाफिजैनी, और जेरी हालत हाफिजैनी। ठीक है जी। अगर हमारे पास कोई मारिफा इसम हो जैसे अल हाफिज, और हमें कहा जाए कि इस वाहिद इसम की तीनों इराबी हालतें बनाएं, तीनों इराबी हालतें, तो हम कैसे बनाएंगे? पेशी हालत एक पेश के साथ बन जाएगी, क्यों? क्योंकि शुरू में अलिफ लाम लग गया। अल हाफिजु, जबरी हालत अल हाफिजा, एक जबर भी चला गया और जायद अलिफ भी चला गया। और जेरी हालत कैसे बन जाएगी? अल हाफिजी, एक जेर के साथ। और अगर हमें कहा जाए अल हाफिज
कि वाहिद इसम दिया गया है आपको, इससे मुसन्ना की तीन इराबी हालतें लिखें। तो कैसे लिख देंगे? पेशी हालत अल हाफिजानी, जबरी हालत अल हाफिजैनी और जेरी हालत अल हाफिजैनी। तो देखा आपने, अलिफ लाम ने क्या किया? सिर्फ साथ लग गया और कोई तब्दीली नहीं की। ठीक है, अलिफ लाम ने और कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ साथ लग गया। तो ये आपके सामने मिसालें आ गई। तो आपने भी इसी तरह से कॉलम्स बना के लाइन लगाकर लिखनी है तीनों हालतें। पेशी हालत आनी के साथ, जबरी हालत ऐनी के साथ, जेरी हालत ऐनी के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मुस्लिमानी। अब यहाँ पे बज़ाहिर आपको नून के नीचे जेर नजर आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिमानी कौन सी हालत है मुसन्ना की, पेशी है, जेरी है या जबरी है, तो आप क्या कहेंगे? मुस्लिमानी। अब आप नून के नीचे जेर को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे आनी को। ठीक है, मुस्लिमानी। आपने इस नून के नीचे जेर को नहीं देखना। अगर आप नून के नीचे जेर को देखेंगे तो आप कहेंगे इस पे तो नीचे जेर लगा हुआ है, तो ये तो जेरी हालत होनी चाहिए। नहीं, हमने क्या पढ़ा कि मुसन्ना मुजक्कर इसम को कैसे पहचानते हैं, मुसन्ना मुजक्कर इसम के एराब को, सॉरी, मुसन्ना मुजक्कर इसम के एराब को कैसे पहचानते हैं? हरूफ से और साउंड से, तलफ्फुज से। तो आनी पेशी हालत की साउंड है, आनी पेशी हालत के हरूफ हैं, और आईनी जेरी और जबरी हालत की साउंड और जेरी और जबरी हालत के हरूफ हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपसे मुस्लिमानी का पूछा गया कि किस एराबी हालत में है, तो आपने कहना है पेशी हालत में है। ये नून के नीचे जेर ये नहीं जाहिर कर रही मुस्लिमानी की कि ये जेरी हालत में है, नहीं, आनी को देखना है आपने। इस तरह से आपसे पूछा जाए मुस्लिमैनी, इसकी अरबी हालत क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नून के नीचे जेर है तो ये जेरी हालत है, नहीं, आप कहेंगे इसमें आईनी लगा हुआ है चूंकि, तो ये जेरी जबरी हालत है। अब जेरी कब होगी और जबरी कब होगी, ये इंशाल्लाह आगे हम वजूहात पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए आपने यही याद रखना है कि दो साउंड्स हैं, हालतें तीन हैं, साउंड्स दो हैं। पेशी हालत की साउंड आनी है और जेरी जबरी हालत की साउंड ऐनी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मुस्लिमानी आनी को देखना है, मुस्लिमैनी ऐनी को देखना है, नून के नीचे जेर को नहीं देखना। तो वाहिद मुजक्कर इसम के एराब को कैसे पहचानते हैं? आखिरी हर्फ पर मौजूद हरकत से, जो हमें सामने लिखी हुई नजर आ रही होती है। जबकि मुसन्ना मुजक्कर इसम के एराब को कैसे पहचानते हैं? हरूफ और साउंड से। आनी पेशी हालत की है और ऐनी जेरी जबरी हालत की है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वाहिद मुन्नस इसम की तरफ। अब आपको पता है कि वाहिद मुन्नस इसम की पहचान क्या है? गोलता, जैसे हमने जिन्स के लिहाज से इसम की इकसाम में पढ़ा था। ठीक है जी, जन्नतुन, मुस्लिमतुन, काफिरतुन, सलातुन, शजरतुन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वाहिद मुन्नस इसम की पहचान क्या है? गोलता। ठीक है जी, और अब हमने क्या देखना है? अब हमने देखना है वाहिद मुन्नस इसम की इराबी हालतें। जैसे हमने पहले वाहिद मुजक्कर मुन्नस की इराबी हालतें देखी थी, अब हमने देखनी है वाहिद मुन्नस इसम की इराबी हालतें। ठीक है जी, तो इसको भी वाहिद मुजक्कर इसम की इराबी हालतें हमने कैसी पहचानी थी, कैसे पहचाने थे उनके इराब कि किस हालत में है? आखिरी हरफ पर मौजूद हरकत से। तो उसी तरह से वाहिद मुन्नस इसम के इराब को भी हम कैसे पहचानेंगे, हालत को कैसे पहचानेंगे? गोल ता पर मौजूद हरकत से। तो पेशी हालत हो तो वाहिद मुन्नस इसम दो पेश के साथ होगा, और अगर अलिफ लाम हो तो फिर एक पेश के साथ होगा। जैसे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, अब दो पेश आपको गोलता के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये पेशी हालत है। और अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? अल मुस्लिमतु, पेश आपके सामने लिखी हुई है। जबरी हालत हो तो वाहिद मुन्नस इसम दो जबर के साथ होगा, और अलिफ लाम की सूरत में एक जबर के साथ होगा। जैसे मुस्लिमतन, ठीक है, दो जबर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अब इन दो जबर के साथ हमने अलीफ का इजाफा नहीं किया, क्यों नहीं किया ये भी देख लेते हैं। तो वाहिद मुन्नस इसम की जबरी हालत कैसे बनती है? दो जबर के साथ, मुस्लिमतन, सामने नजर आ रहे हैं दो जबर लिखे हुए, और अगर अलिफ लाम लगा हो तो अल मुस्लिमता। इस तरह से जेरी हालत में कैसे बनेगी? वाहिद मुन्नस इसम दो जेर के साथ और अलिफ लाम की सूरत में एक जेर के साथ। जैसे मुस्लिमतिन, अलिफ लाम आ जाएगा तो अल मुस्लिमती। तो वाहिद मुन्नस इसम के एराब को भी हम आखिरी हर्फ पर मौजूद यानी गोलता पर मौजूद हरकत से पहचानेंगे। अच्छा जी, अब क्या आपने नोट किया कि वाहिद मुन्नस की जबरी हालत बनाते हुए हमने दो जबर के साथ जायद अलिफ नहीं लगाया। जैसे मुस्लिमतन जब हमने बनाया तो दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं किया, जबकि जब हमने वाहिद मुजक्कर इसम की जबरी हालत बनाई थी तो दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा किया था। जैसे मुस्लिमन, काफिरन, मुशरिकन,
मुस्लिमन, मुमिनन, फासिकन, दो जबर के साथ अलीफ का इजाफा किया था। ऐसा क्यों किया था? तो ये क्यों और एक्सेप्शन के अल्फाज आपको इस कोर्स में कई जगह पर मिलेंगे। तो ये एक्सेप्शन आप समझ लीजिए कि दो जबर और अलिफ, दो जबर के साथ जायद अलिफ का इजाफा होगा, लेकिन कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शन है। जिस इसम के आखिर में गोलता हो या अलिफ हमजा आ जाए, ठीक है, जिस इसम के आखिर में गोलता हो या अलिफ हमजा नजर आएगा, उसके साथ जबरी हालत में यानी दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी, तो एक्सेप्शन क्या है? दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा होगा जबरी हालत में, लेकिन कहाँ पर नहीं होगा? अगर इसम के आखिर में गोलता हो या इसम के आखिर में अलिफ हमजा आ जाए, तो वहां पे जबरी हालत में दो जबर के साथ जायद अलिफ का इजाफा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मिसालें दी गई हैं, जन्नतन, अब दो जबर तो हैं, लेकिन अलीफ का इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गोलता हमें नजर आ रही है, तो हमने कहा कि एक्सेप्शन है गोलता के साथ। दो जबर अगर लगे हों गोलता के ऊपर तो हम अलीफ नहीं लगाते। इस तरह से देखिए, सोलातन, सोलातन दो जबर हैं लेकिन अलीफ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गोलता है। जजाअन, दो जबर हैं लेकिन अलिफ नहीं लगाया जायद। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने एक्सेप्शन पढ़ी कि जिस भी इसम के आखिर में गोलता हो या अलिफ हमजा आ जाए, उसमें दो जबर के साथ जब हम जबरी हालत बनाएंगे तो दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने मिसालें हैं। ये देखिए, मुस्लिमन, काफिरन, मुशरिकन, इसमें देखिए दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा है जबरी हालत में। ठीक है, वाहिद मुजक्कर इसम में दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मुस्लिमा से मुस्लिमा गोलता के साथ मुस्लिमतुन पेशी हालत, मुस्लिमतन जबरी हालत, मुस्लिमतिन जेरी हालत। अब जबरी हालत को देखिए, मुस्लिमतन, काफिरतन, मुशरिकतन, मुमिनतन, मुनाफिकतन, सालिहतन, फासिकतन, फाशिअतन। इन सब में देखें दो जबर के साथ जायद अलिफ नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। गोलता अगर आखिर में हो इसम के, किसी इसम के आखिर में गोलता हो, तो दो जबर के साथ जबरी हालत में अलिफ का इजाफा नहीं करते। इस तरह से आखिरी तीन देखिए, समाअन, माअन, जजाअन, इनमें भी दो जबर है आखिर में, लेकिन जायद अलिफ का इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आखिर में इस इस्म के इन तीनों अस्मा के आखिर में अलिफ हमजा आ रहा है। तो जिन अस्मा के आखिर में गोलता हो या अलिफ हमजा हो, तो उसकी जबरी हालत में दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। इसम वाहिद है, अस्मा जमा है। जैसे फेल वाहिद है, अफआल जमा है। तो ये जो अल्फाज हैं ये आपने याद रखने हैं। इसम वाहिद है, अस्मा जमा है। तो जिन अस्मा के आखिर में गोलता हो या अलिफ हमजा हो, तो उसकी जबरी हालत में दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं मुसन्ना मुन्नस की एराबी हालतें। मुसन्ना मुजक्कर की एराबी हालतें हमने देख ली, आनी और ऐनी से पहचाननी है। तो मुसन्ना मुन्नस इसम की एराबी हालतें देखते हैं। तो वाहिद मुन्नस इसम से मुसन्ना बनाने का तरीका बिल्कुल वाहिद मुजक्कर इसम से मुसन्ना बनाने जैसा है। मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसन्ना मुन्नस हो या मुसन्ना मुजक्कर हो, तरीका सेम है। ठीक है जी, अब मुसन्ना मुन्नस बनानी है हमने। अब वाहिद मुन्नस के आखिर में गोलता ही होगी ना, तो गोलता से तनवीन हटाई, एक जबर लगाई और आगे पेशी हालत के लिए आनी लगा दिया और जेरी जबरी हालत के लिए आईनी लगा दिया। सिंपल। जैसे मिसाल के तौर पर जन्नतुन, जन्नतुन, अब जन्नतुन है, दो पेश आ रही हैं, क्या करेंगे? गोलता के ऊपर से तनवीन हटाई, एक जबर लगाई और आनी लगा दिया। जन्नतन, दो जबर हैं, क्या किया? तनवीन हटाई, ता के ऊपर एक जबर लगाई और आगे आईनी लगा दिया, तो बन गया जन्नतैनी। जन्नतुन से जन्नतानी, जन्नतन से जन्नतैनी। इसी तरह से अगर ये हो जन्नतिन दो जेर के साथ, तो फिर क्या करेंगे? तनवीन हटाई, गोलता के ऊपर से एक जबर लगाई और आगे आईनी लगा दिया, तो बन गया जन्नतैनी। तो मुसन्ना मुजक्कर इसम हो चाहे मुसन्ना मुन्नस इसम हो, तरीका सेम है। आखिर से तनवीन हटानी है, एक जबर लगानी है और पेशी हालत के लिए आनी लगा देना है और जेरी जबरी हालत के लिए आईनी लगा देना है। ठीक है, ये आपके सामने मिसालें लिखी हुई हैं। पेशी हालत मुस्लिमतानी, काफिरतानी, मुशरिकतानी, और जबरी हालत मुस्लिमतैनी, काफिरतैनी, और जेरी हालत मुस्लिमतैनी, काफिरतैनी, एंड सो एंड सो। तो पेशी हालत की साउंड क्या है? आनी, और जेरी जबरी हालत की साउंड है आईनी। अब अगर कभी ऐसा हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मुस्लिमतानी ये मुजक्कर है या मुन्नस है, तो सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है? मुस्लिमतानी
अब अगर आप फंस गए कि ये मुज़क्कर है कि मुन्नस है, क्या करें? तो सिंपल क्या करना है, आनी हटाना है। आनी हटाया, पीछे क्या बच गया, मुस्लिमता। मुस्लिमता, इस जबर को हटाया, और ये ता है इसको गोलता में बंद कर दिया, वापस गोलता बना दिया। और आनी लगा हुआ था तो क्या बन जाएगा ये, दो पेश में बदल जाएगा वाहिद इसम के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, मुस्लिमतुन। तो मुस्लिमतुन आखिर में गोलता है, तो ये क्या है, ये मुन्नस है। इस तरह से मुस्लिमतैनी, फंस गए हैं, ये मुजक्कर है कि मुन्नस है, क्या करेंगे, ऐनी हटाएंगे, एंड में ता बच गया। ठीक है जी, ता को क्या किया, गोलता से बदल दिया। और ऐनी बना हुआ था तो दो जबर से बना होगा या दो जेर से बना होगा, तो यहाँ तो ये मुस्लिमतन होगा या ये मुस्लिमतिन होगा। तो मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन क्या है, गोलता लगा हुआ है, तो ये मुन्नस है। ठीक है, तो अगर कभी फंस जाए, वैसे तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि आप लोग फंसे, क्योंकि आप लोगों ने मसला ये पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि फंस जाए, तो ये एक तरीका है जानने का। ठीक है जी। अगर हमारे पास अल आ जाए शुरू में, अलिफ लाम आ जाए, तो अलिफ लाम ने मुसन्ना इसम पर कोई भी असर नहीं डालना। जैसे हमने पीछे भी अल हाफिजानी, अल हाफिजैनी, अल हाफिजैनी बनाया था, कोई असर नहीं डाला। ठीक है, ऐसे ही हम अगर मुसन्ना मुन्नस इसम के आखिर शुरू में भी अलिफ लाम लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मुसन्ना पेशी हालत मुजक्कर देख लें, नकिरा मुशरिकानी, मारिफा कैसे बन जाएगी, अल मुशरिकानी, सिर्फ अलिफ लाम अटैच हो गया, अलिफ लाम लग गया। मुसन्ना जेरी जबरी हालत मुजक्कर कैसी है, मुशरिकैनी नकिरा, और अलिफ लाम लगा दिया तो अल मुशरिकैनी। ऐसे ही पेशी हालत मुसन्ना पेशी हालत मुन्नस, नकिरा हो तो मुशरिकतानी, और मारिफा हो तो शुरू में अल लग जाएगा, अल मुशरिकतानी। और मुसन्ना जेरी जबरी हालत हो मुन्नस की तो कैसे बनेगी, नकिरा मुशरिकतैनी, और मारिफा में क्या होगा, शुरू में बस अलिफ लाम लग जाएगा, अल मुशरिकतैनी। तो अल ने कोई भी असर नहीं डाला, अल ने कोई भी असर नहीं डाला, सिर्फ शुरू में लग गया। ठीक है जी। अच्छा, तो आज हमने पढ़ा क्या कि वाहिद मुजक्कर इसम हो या वाहिद मुन्नस इसम हो, वाहिद मुजक्कर इसम हो या वाहिद मुन्नस इसम हो, इसके एराब कैसे पहचानने हैं, आखिरी हर्फ पर मौजूद हरकत से। नकिरा होगा तो तनवीन लगी होगी, दो पेश दो जबर दो जेर, और अगर शुरू में अलिफ लाम होगा तो ऑटोमेटिकली आखिर से एक जबर एक जेर एक पेश उड़ जाएंगी। वाहिद मुजक्कर इसम के आखिर में जबरी हालत में दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा होता है। जबकि एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, कि जिस भी इसम के आखिर में गोलता हो या आखिर में अलिफ हमजा आ जाए तो वहां पर दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा। फिर हमने देखा मुसन्ना मुजक्कर इसम की इराबी हालतें और मुसन्ना मुन्नस इसम की इराबी हालतें, दोनों का तरीका सेम है। आखिर से तनवीन हटाई, जबर लगाया, और पेशी हालत के लिए आनी लगा दिया, और जेरी जबरी हालत के लिए आईनी लगा दिया। तो वाहिद मुजक्कर इसम हो या वाहिद मुन्नस इसम हो, इराबी हालतें या इराब कैसे पहचानने हैं, आखिरी हर्फ पर मौजूद हरकत से। और अगर मुसन्ना मुजक्कर इसम हो या मुसन्ना मुन्नस इसम हो, इसके एराब कैसे पहचानने हैं, हरूफ से और उनकी साउंड से, उनकी आवाज से, उनके तलफ्फुज से। आनी पेशी हालत की साउंड, आईनी जेरी जबरी हालत की साउंड। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाहिद अस्मा की तीनों एराबी हालतें बनाएं। फासिक, फासिक, अब तीनों बनानी है। फासिकुन पेशी हालत, फासिकन दो जबर एक जायद अलिफ के साथ जबरी हालत, और फासिकिन जेरी हालत। मुनाफिक, मुनाफिकुन पेशी हालत, मुनाफिकन दो जबर और जायद अलिफ के साथ जबरी हालत, और मुनाफिकिन जेरी हालत। मुशरिक, मुशरिकुन पेशी, मुशरिकन जबरी दो जबर और जायद अलिफ के साथ, और मुशरिकिन जेरी। काजिब, काजिबुन, काजिबन दो जबर जायद अलिफ के साथ, और काजिबिन। बाबुन, बाबन दो जबर जायद अलिफ के साथ जबरी हालत, और बाबिन जेरी हालत। शहीदुन, शहीदन, शहीदिन शहीदन में दो जबर के साथ अलिफ आ जाएगा। फकीर, फकीरुन, फकीरन दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा, और फकीरिन। नबीयुन, नबीयन दो जबर के साथ अलिफ, और नबीयिन। अस्सालिह, अब इसकी बनानी है। अस्सालिहु, अब क्या होगा, शुरू में अलिफ लाम आ गया है, तो एंड से एक पेश उड़ जाएगी। अस्सालिहु, अस्सालिहा एक जबर के साथ, और जायद अलिफ भी चला जाएगा। अस्सालिही, अस्सलातु, अस्सलाता, अस्सलाती। अस्वाबिरतु, अस्वाबिरता, अस्वाबिरती। अल मुशरिकतु, अल मुशरिकता, अल मुशरिकती। अर्रसूलु, अर्रसूला, अर्रसूली। तो ये बन गई इसकी एराबी हालत है। आपने उसी तरह से तीन कॉलम्स बनाने हैं, पेशी हालत जबरी हालत जेरी हालत, और उनमें तीनों में लिख देना है। अगर ये हो हमारे पास सॉलिह, तो कैसे बनेगा, अलिफ लाम ना हो तो सॉलिहुन,
صالحن दो जबर अलिफ के साथ और सालिहिन। इस तरह से अगर ये अस्सलाह गोलता के साथ हो अलिफ लाम ना हो तो कैसे बनेगा सलातुन सलातन। अब दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा क्योंकि एंड में गोलता आ रहा है। और सलातिन। ऐसे ही मुशरिका गोलता के साथ हो अलिफ लाम ना हो तो कैसे बनेगा मुशरिकतुन मुशरिकतन। दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा और जेरी हालत बन जाएगी मुशरिकतिन। दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा कब होगा जब आखिर में गोलता या अलिफ हमजा ना हो। ठीक है जी। और रसूल रसूल की तीनों राबी हालतें क्या होगी वाहिद इसम की रसूलुन रसूलन दो जबर अलिफ के साथ और रसूलिन। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सेप्शन क्या है कि अगर इसम के आखिर में गोलता या अलिफ हमजा आ जाए तो जबरी हालत में दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं करते। और जो बात याद रखने वाली है कि अगर वाहिद मुजक्कर इसम हो या वाहिद मुन्नस इसम हो वाहिद मुजक्कर इसम या वाहिद मुन्नस इसम उसके इराब को कैसे पहचानेंगे आखिरी हरफ पर मौजूद हरकत से। और अगर मुसन्ना मुजक्कर इसम हो या मुसन्ना मुन्नस इसम हो तो उसके इराब को कैसे पहचानेंगे हरूफ और उनके तलफ़ुज़ से उनकी साउंड से आनी पेशी हालत की और ऐनी जेरी जबरी हालत की। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला चलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।